students, welcome you to all in SGI online class, and this is your biology class. Students, today we will continue with the unit 2, that is communicable disease of chapter 7, health and hygiene. In our previous class we already discussed the disease due to non-communicable disease which is caused due to the deficiency of vitamins and carbohydrate. Today we are going to discuss the disease due to the deficiency of vitamins. So students, the disease is due to the deficiency of vitamins. There are lots of nutrients which is present in our diet, and every nutrient play a very important role and specific role in our body. Vitamins needed in our body in a small quantity. Vitamins हमारी बॉडी के लिए स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होते हैं, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स ऑल्सो, लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. एंड देयर इज ऑल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन बी, लाइक B1 to B12. ये अलग अलग तरह के विटामिन्स अलग अलग तरह की बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, बट दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी. But if there is deficiency of these vitamins, they also cause some diseases in our body. Like vitamin A cause the night blindness. Night blindness is a disease, means proper night vision नहीं होता है, जिसे उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. जब प्रॉपर नाइट विजन नहीं होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है. इस डिजीज को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. एंड द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इज द बेरी-बेरी. बेरी-बेरी इज अ डिजीज. बेरी-बेरी इज एक्चुअली अ डिजीज, मींस लाइक अ लॉस ऑफ एपेटाइट, पैरालिसिस, नर्वसनेस. इस तरह की जो डिजीज होती है विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. स्टूडेंट्स, आप जानते हो आजकल जो फूड होते हैं वो प्रोसेस फूड आ रहे हैं. we use in our daily life. There are various types of processed food, but the processed food and the polished foods are not good for our health, because जो processed food होते हैं या polished जो food होते हैं उसमें विटामिन बी की लैक होते हैं, विटामिन बी की कमी होती है. विटामिन बी उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्रोसेस फूड से या पॉलिश फूड से. सो वी ऑलवेज कंज्यूम नॉट प्रोसेस फूड और नॉट पॉलिश फूड. हमें कभी भी बिना पॉलिश किए और कोई भी प्रोसेस फूड को कम से कम ईट करना चाहिए. जो नेचुरली जो फूड होते हैं हमें उन्हें वैसे ही कंडीशन में ईट करना चाहिए. नेक्स्ट डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज द स्कर्वी. Scurvy is like a disease, bleeding of germs and swelling of joint. This is a disease called known as scurvy. Next, the disease which is caused by the deficiency of vitamin D is the rickets. Rickets, the disease which is caused by the deficiency of vitamin B. And rickets में क्या होता है? There is a weakness in our bones and decaying in the teeth. Next is the deficiency by the disease which is caused by the deficiency of vitamin K. Hemorrhage. Students, hemorrhage is a disease in which there is a problem in the clotting of the blood. आपको पता है जब आप कभी इंजर्ड होते हो या वुंड होता है तो उसमें आपकी कॉन्टिन्यूसली ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, और ब्लीडिंग के प्लेस पर देयर इज अ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. वो जो ब्लड का क्लॉट होता है वो प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग से. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी. एंड ये जो डिजीज़ है दैट इज हेमोरेज. हेमोरेज इज अ डिजीज इन विच देयर इज ए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड. ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और लगातार ब्लीडिंग होने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. नेक्स्ट इज द डिजीज due to the deficiency of minerals. Like vitamins, minerals also needed a small quantity in our body, but they play major role for the different functioning of our body. Like calcium, phosphorus make our bones and teeth healthy, and sodium hydrate our body. Potassium makes our muscles strong. Iron
टू मेक द बैलेंस ऑफ द ब्लड को इंक्रीज करता है, ब्लड की क्वांटिटी को इंक्रीज करता है। आयोडीन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी एंड द फ्लोरीन हेल्प आवर टीथ टू हेल्दी टीथ के लिए होता है फ्लोरीन। दीज मिनरल्स आर नीडेड फॉर अवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी बट दे प्ले major role in the different functioning of our body and the deficiency of these minerals also cause a disease like the disease which is caused by the deficiency of calcium की deficiency से कौन सी disease हो जाती है? कैल्शियम से जो हमारे बोन्स होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, मीन्स जैसे कि रिकेट्स से होता है। रिकेट्स में क्या होता है, हमारे बोन्स जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी से भी यही डिजीज़ होती है, रिकेट्स या फिर ब्रिटल बोन जिसे बोलते हैं। या ब्लीडिंग होने लगती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है जम्स में, टीथ में। दिस इज द डिजीज विच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। एंड फॉस्फोरस में क्या होता है, टीथ एंड बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सोडियम से डिहाइड्रेशन हो जाता है बिकॉज इट डिहाइड्रेट अवर बॉडी। सो बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इट डिहाइड्रेट अवर बॉडी में वीकनेस होने लगती है। पोटेशियम में डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम मेक्स द मसल्स वीक बनाती है हमारे मसल्स को, या पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज होती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर डिजीज होती है। ग्वाइटर इज अ डिजीज इन विच देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन अवर नेक इज एनलार्ज, वो एनलार्ज होती है। दिस डिजीज नोन एज ग्वाइटर बिकॉज थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज करती है, जिससे कि थायराइड नहीं होता है। तो ये जब ग्वाइटर कैसे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ओके, फ्लोरीन इज अ deficiency of fluorine cause a disease that is tooth decay. So these are the disease which is caused by the deficiency of minerals. Next is the disease due to malfunctioning of body organs. Students, malfunctioning means improper functioning of the body organs. हमारे बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को ही माल फंक्शनिंग भी कहते हैं। एंड दिस डिजीज अकर ड्यू टू द वियर एंड टीयर, मीन्स दीज ऑर्गन वर्क लेस विद द एज इज अ फैक्टर फॉर दिस डिजीज। ये माल फंक्शनिंग कब होती है, एज इज अ मेन फैक्टर फॉर दिस। एज एक मेन फैक्टर है क्योंकि जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एज के साथ उनकी जो वर्क होती है वो लेस हो जाती है। सो देयर इज ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन विद द एज। स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ऑर्गन्स लाइक पेंक्रियाज, हार्ट, आइज लेंस, किडनी एंड बोन्स, ये हमारे एज के साथ इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी इफेक्ट हो जाती है, इनकी फंक्शनिंग जो है वो लेस हो जाती है, वर्क लेस हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम और डिसऑर्डर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ लाइक शुगर मेटाबॉलिज्म लाइक डिजीज, डायबिटीज़। शुगर मेटाबॉलिज्म मतलब डायबिटीज़ का जो क्या होती है, डायबिटीज़ होती है जो हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होती है, उनका लेवल जब हाई रहता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़, वो कंडीशन होती है डायबिटीज़ की। तो ये जो पेंक्रियाज ग्लैंड है, इनसे प्रॉपर जब हमारे एज के साथ प्रॉपरली वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। एंड द डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक, आईसाइट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अर्थराइटिस में डेवलप। This type of disease which is caused by the improper functioning of the body organ. So first disease is the diabetes. Students, diabetes is a disease which is caused by the malfunctioning of the pancreas in the body. Pancreas क्या है? Pancreas is a gland. Pancreas is a gland which secrete a hormone known as insulin. पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जिससे हार्मोन इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। एंड दिस इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंसुलिन? दिस इंसुलिन मेंटेन द शुगर लेवल इन अवर ब्लड, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। बट देयर इज नॉन सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द पेंक्रियाज ग्लैंड। अगर पेंक्रियाज ग्लैंड से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे जो ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है एंड इट कॉज अ डिजीज दैट इज नोन एज डायबिटीज़। इससे एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? डायबिटीज, देयर इज एक्सेसिव थर्स्ट एंड द
there is a frequent urination at night and there is a loss of weight. These are the symptoms of the diabetes. Students, persons suffering from the diabetes have to measure their blood sugar and the blood sugar concentration and they test their urine regularly. उनको हमेशा ही अपने ब्लड शुगर लेवल कंसंट्रेशन को चेक करना चाहिए, यूरिन को चेक करना चाहिए कि उनके ब्लड में शुगर का लेवल कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो टेक केयर अबाउट देयर डाइट, मीन्स उनको डाइट में लेस कार्बोहाइड्रेट वाले फूड लेने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक तरह की शुगर होती है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज कर सकती है. तो उनको कैसे फूड लेना चाहिए उनको अपनी डाइट में, डायबिटिक पेशेंट को, इसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हो. नेक्स्ट इज द हार्ट डिजीज. हार्ट disease. So the disease of heart including the atherosclerosis and coronary heart disease. The disease जो भी हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उनको हम बोलते हैं हार्ट डिजीजेस. एक हार्ट अटैक हो गया या अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या फिर जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स होती हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर होने लगता है तो ब्लड प्रेशर कॉज हो जाता है, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक. इस तरह की किसी भी तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो होती हैं हार्ट डिजीज़. सो लाइक आर्टेरियल वॉल गेट हार्डन एंड थिकन, रिड्यूस द फ्लो ऑफ द ब्लड. जब ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है हमारी आर्टरी से, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आर्टरी की जो वॉल होती हैं वो थिक हो जाती हैं. जब वो थिक हो जाएंगी तो हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. दिस कंडीशन इज नोन एज बीपी. एंड इन कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है, द आर्टरीज विच सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट मसल्स गेट हार्डन, वो हार्ड हो जाती हैं एंड द ब्लड सप्लाइज टू द हार्ट मसल्स इज रिड्यूस. जो हमारे ब्लड हार्ट की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो क्या हो जाता है, उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है एंड ऑल्सो रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स एंड दिस इज टेम्परेरी पेन इन द चेस्ट. इससे क्या होता है, हमें चेस्ट में पेन होने लगता है जब ब्लड की सप्लाई मसल्स तक कम हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ डिजीज नोन एज हार्ट डिजीज विच इज कॉज एट द एज ऑफ द पर्सन्स. कि किसी पर्सन्स की जब किसी की एज फैक्टर, एज इज अ मेन फैक्टर फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज. नेक्स्ट डिजीज इज द कैटरेक्ट. Cataract is a disease which is related to our eyes, means eyesight, we can say eyesight decrease. eyesight क्या हो जाते हैं, eyesight डिक्रीज हो जाती है. जो eyesight से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं cataract. Okay students, so cataract occurs due to the change in the eye lens which become opaque and blindness. आई लेंसेज में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई तो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, आई साइट्स इफेक्ट्स हो सकती हैं, आई से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं. नेक्स्ट डिजीज इज द आर्थराइटिस. Students, this disease arthritis which is a disease of joints. Actually there is an inflammation on the joint, there is a pain in the joints. This disease is known as arthritis. And next disease is the किडनी से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, किडनी डिसऑर्डर. किडनी डिसऑर्डर जैसे कि माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. एक्चुअली व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी? फॉर द किडनी इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ऑल्सो इन द किडनी. किडनी में हमारी यूरिन का फॉर्मेशन होता है. तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और जो हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उससे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से आउट करती है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, वाटर, सॉल्ट,
These products are eliminated from our body in the form of urine. हमारी बॉडी से ये जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, ये यूरिन के फॉर्म में ये एक्सक्रीट होते हैं। और लेकिन कभी कभी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिमूवल ऑफ दीज प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। और ये कंडीशन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं यूरीमिया। दिस इज बिकॉज द किडनी डिसऑर्डर। ये कैस किस तरह से होती है, किडनी के डिसऑर्डर की वजह से प्रॉपरली हमारी बॉडी से वो वेस्ट एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं और हमारी बॉडी में, ब्लड में वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं यूरेमिया। Okay students, so these are the some disease and there are some organs which is affected by which is affected. Okay, we can say that these are the disease which is caused by the malfunctioning of the body organ. Next is the fever. So students, we will discuss the next disease in our next class. Thank you students, have a nice day.